پہلی آیت اور اس کے بعد 8ویں آیت سے 16ویں آیت کے آخر تک ہم خداوند کا مقدس کلام پڑھیں گے اور سنیں گے۔ خدا کا کلام کھولیے میرے ساتھ، رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، پہلا باب، پہلی آیت سے یوں لکھا ہے: پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ 8ویں آیت سے: اول تو میں تم سب کے بارے میں کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرا ہو رہا ہے، چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے کہ میں بنا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں، تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ، غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں ہے اور مجھ میں دونوں میں ہے۔ اور اے بھائیو، میں اس سے تمہارا ناواقف ہونا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے، مگر آج تک رکا رہا۔ میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں کا قرض دار ہوں، پس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حد المقدور تیار ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ رومیوں کے نام خط، دنیا کی عظیم ترین سلطنت کے عظیم ترین شہر کی کلیسیا کے نام لکھا گیا۔ اگرچہ مقدس پولس رسول یہ خط لکھنے سے پہلے کبھی روم نہیں گیا تھا اور نہ ہی شخصی طور پر کبھی اس کی ملاقات اس کلیسیا سے ہوئی تھی، لیکن روم میں انجیل کا پیغام لے کر جانے کی شدید خواہش
کے اندر مچلتی رہتی تھی۔ رسولوں کے اعمال کے 19ویں باب کی 21ویں آیت میں رسول ذکر کرتا ہے، جب یہ ہو چکا تو پولوس نے جی میں ٹھانا کہ مقدونیہ اور اخیا سے ہو کر یروشلیم کو جاؤں گا، اور وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے۔ ایک خاص ایک ویژن جو رسول کے اندر دن بدن گرو کر رہا تھا، بڑھ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی وقت وہ انجیل کا پیغام لے کر سمندر پار روم کے علاقے کے اندر جا سکے۔ اور پھر رومیوں کے نام خط کے پہلے باب کی 10ویں اور 11ویں آیات میں رسول لکھتا ہے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں، تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ عصر حاضرہ کی کلیسیا کے قائدین کے لیے چیلنج وہ یہ ہے کہ جب ہم کلیسیاؤں میں جاتے ہیں، کلیسیاؤں کے پاس جاتے ہیں، تو ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کیا رسول کی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی روحانی نعمت تمہیں دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ رومیوں کے نام خط ایک خط سے کہیں زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ویل آرگنائزڈ ایسے ہے جس میں عہد جدید کے ماہر الہیات بزرگ مقدس پولس رسول نے خداوند یسوع مسیح کی انجیل یا خوشخبری کو موسٹ ڈیٹیل سمری کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس الہیاتی صحیفہ میں رسول مسیحی ایمان کے عقائد یعنی کرسچن ڈاکٹرائنز یا مسیحیت کی بنیادی دینیاتی تعلیمات کو انتہائی احسن انداز سے پیش کرتا ہے۔ مقدس پولس رسول کی تمام الہامی تحریروں میں رومیوں کے نام کا خط سرتاج یا ملکہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک یونانی ادبی نقاد نے ایک دفعہ لکھا کہ ہر ایک لکھنے والا اپنی تحریروں یا خطوط میں اپنی جان، اپنی سول اور اپنے انر بینگ کا اظہار کرتا ہے۔ اس خط کو مشترکہ طور پر مسیحی عقائد کی عظیم ترین ایکسپوزیشن توضیح سمجھا جاتا ہے۔ یہ منظم و مدلل الہیاتی سچائیوں کی عقیق و دقیق پروفاؤنڈ تکمیل کا بیان ہے۔ اس خط کے اندر ہمیں خلاصی تمام انسانوں کے گناہگار ہونے، ہمارے خدا کی مدد حاصل کرنے کی نااہلی، مسیح کی کفارہ بخش موت اور نجات کے مفت تحفہ جو ہم صرف ایمان سے حاصل کرتے ہیں، یہ خط ان تعلیمات سے بھرا پڑا ہے۔ اگرچہ اس خط میں لوکل پرابلمز کا ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا، کیونکہ رسول اس سے بیشتر کبھی وہاں گیا نہیں تھا، لیکن مسیحی ایمان کی تعلیمات جو ہر ایک دور کے مسیحی کے لیے انتہائی اہم ہے، یہ خط
मसीही इलाहियाती खजानों से भरा पड़ा है। तमाम कलीसियाई तारीख में रूमियों के नाम का खत बहुत सी बेदारियों के लिए चिंगारी साबित हुआ। जब लोग खुदा की मैग्निफिसेंस, शान शौकत और उसके फजल से जो हमारे लिए है आगाह होते हैं, तारीख शाहिद है कि इस इलाहियाती इल्हामी खत के वसीले बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल गई, तब्दील हो गई। उनमें पहला शख्स शुमाली अफ्रीका का ऑगस्टन, जिसे हम कलीसियाई तारीख में सेंट ऑगस्टन के नाम से याद करते हैं, 386 मसीह में रोमियो के खत के 3 बाब की 13वीं और 14वीं आयत के मुताला ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। फिर 1513 मसीह में जर्मनी के मार्टिन लूथर, जिसे कलीसियाई तारीख में फादर ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है, बानी कहा जाता है, उसकी जिंदगी उस वक्त तब्दील हुई जब वो रोमियो के नाम खत के पहले बाब की 17 आयत की तफसीर करने के लिए मुताला कर रहा था कि रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा। और फिर 1738 में जॉन वेस्ली ने, जब वो एल्डरगेट स्ट्रीट में से गुजर रहा था, उसने मार्टिन लूथर के रोमियो के नाम खत का तारुफ किसी को बुलंद आवाज से पढ़ते सुना, और इस तारुफ की आवाज ने जॉन वेस्ली की जिंदगी को बदल दिया। उसके बाद 1910 में जापान का एक बुद्ध पुरोहित रोमियो के नाम खत के 8वें बाब की 3री आयत को पढ़ने से तब्दील हो गया। मेरे नजदीक मसीही ईमान को समझने के लिए रोमियो के नाम खत एक कुलीद है, एक कुंजी है, एक खुलासा है, और इसके बगैर हमें पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर मसीही ईमान की समझ नहीं मिलती है। जॉन कैल्विन, उसने इसे पाक नविश्तों के खजानों को समझने के लिए खुला दार करार दिया है। मार्टिन लूथर ने इसे अहदे जदीद की कुलीदी किताब कहकर पुकारा है। जेबी फिलर, उसने इसे पौलुस की इंजील करार दिया है। इस खत का मजमून वो ये है कि यीशु मसीह में खुदा की रास्तबाज़ी, और इस सारे खत के अंदर जो बात डिस्कस की गई है, जिस बात पर जोर दिया गया है, वो ये है कि रास्तबाज़ी मसीह के वसीले, मसीह में हमें खुदा की तरफ से मिलती है। और मजे की बात यह है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, कि इस खत की वर्सेस, वो रोमियो के नाम खत का पहला बाब 16वीं और 17वीं आयत, और इस कन्वेंशन की वर्सेस या सुनहरी आयत भी ये है। और इन 2 आयत को मसीही दुनिया में इंजीले सुगरा या मिनी गॉस्पल कहकर पुकारा जाता है। और यहां पर रसूल ये ऐलान करता है, और ये आज रात की इबादत का मजमून भी है, मैं इंजील से शर्माता नहीं। I am not ashamed of gospel। इससे यूं लगता है कि रसूल और खुशखबरी के दरमियान एक रिश्ता कायम हो चुका है, जो टूट नहीं सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता। कोई जगह भी हो, कोई सल्तनत हो, कोई तहजीब हो, कोई माहौल हो, रसूल इंजील सुनाना फख्र समझता है, और वो कहता है कि मैं इंजील से शर्माता नहीं।
जब हम पौलुस रसूल के खतूत और पॉलियन थियोलॉजी का मुताला करते हैं तो हमें रसूल की खुशखबरी या इंजील के लिए जो उसकी डेडिकेशन है, उसकी मखसूसियत है, उसकी वफादारी है, उसका कमिटमेंट है, इसका इजहार मिलता है। और फिर हमें ये भी मिलता है कि वो इंजील को कैसे समझता था। और कलाम ये कहता है कि खुदा की रास्तबाजी वो मसीह के फजल के वसीले अब जाहिर हुई है, और अब इसका दारोमदार, इसका डिपेंड जो है वो शरीयत के तकाजे पूरे करने पर नहीं, बल्कि खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने से हर एक गुनहगार रास्तबाज ठहराया जाता है। पौलुस रसूल इंजील के पैगाम की वसअत, उसकी फसाहत को बयान करने के लिए 87 अबवाब और 2033 आयात का इस्तेमाल करता है, ताकि खुशखबरी के पैगाम का खुलासा ईमानदार के सामने पेश किया जा सके। और इंजील खुशखबरी ये रसूल के ईमान की बुनियाद है, उसके ईमान की फाउंडेशन, बुनियाद कोई मजहबी रवायात नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, या कोई मजहबी तालीमात नहीं है, बल्कि उसके ईमान की बुनियाद वो खुशखबरी है जो मुकाशफाती तौर पर उसे मिल गई, और उस खुशखबरी ने उसको बदल दिया, उसको तब्दील कर दिया। और आज रात जब आप ये खुशखबरी सुन रहे हैं, ये आपको, आपके हालात को भी तब्दील कर देने की कुदरत रखती है। कोरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 15वां बाब 13वीं आयत में रसूल लिखता है, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी। ये उसकी इंटेग्रिटी, उसकी ऑनेस्टी, कि उसने सबसे पहले अपनी तंजीम का प्रोफार्मा पेश नहीं किया, ना अपनी तंजीम के इकरार ईमान की बाबत बात की है, क्योंकि वो जानता था इंसान की खड़ी हुई लिखी हुई बातें ये मजहब और ज़ाब्ता तो हो सकती हैं, लेकिन निजात नहीं हो सकती है, गुनाहों की माफी नहीं हो सकती है, रास्तबाजी नहीं दे सकती है। अगर कोई चीज दुनिया में गुनहगार को बदल सकती है, अगर वो घूरे और मजबले और तारीकी के अंदर पड़े हुए शख्स को तख्त पर कोई चीज बिठा सकती है, तो वो खुदा के बेटे यीशु की इंजील, उसकी खुशखबरी का पैगाम है, उसके अंदर ये ताकत है, उसके अंदर ये कुदरत है कि ये बदल देती है। हालेलुया। वो कहता है मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। इट्स अ हार्ट ऑफ गॉस्पेल। ये इंजील का, खुशखबरी का दिल है, खुलासा है। और रसूल इसी बात की दूसरी आयत में कहता है, वो इसी खुशखबरी के वसीले तुमको निजात भी मिली। और मैं इस बात का गवाह हूं कि इसी खुशखबरी ने मुझे गुनाह के बंधनों से आजाद करके मुझे मसीह का खादिम बना दिया। और दुनिया में मेरे लिए सबसे बड़ा एहसास यह है कि मैं उसकी इंजील उठाता हूं, मैं उसकी खुशखबरी का पैगाम दुनिया की कौमों और उम्मतों और कलीसियाओं को देता हूं। और इसलिए देता हूं क्योंकि जानता हूं कि ये इंजील, ये पैगाम बदल देती है, तब
देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है, और इस बोझ से देता हूं कि दुनिया का हर एक गुनहगार मसीह की बादशाही का हिस्सा बन जाए। और मेरा ईमान यह है, आप जितने ईमानदार यहां पर बैठे हुए हैं, आप सबके अंदर भी ये वियन ठाठे मार रहा है। रोमियो के नाम खत के पहले बाब की पहली 17 आयत में रसूल खुशखबरी के ताल्लुक से 6 अहम बातें बयान करता है। जब रसूल की शख्सियत की इस डायमेंशन को देखते हैं तो यूं लगता है कि यह भरा हुआ ही इंजील से था। इसको आसमान से जो समझ मिली, जो मुकाशफा मिला, वो सिर्फ इंजील था। और वो इंजील के बारे 6 बातें बयान करता है, जल्दी से सुनिएगा। पहली बात ये कि खुशखबरी या इंजील का ओरिजिन या मंबा ये खुदा है। इट्स नॉट फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट, इट्स नॉट फ्रॉम व्हाइट एंड ब्लैक। ये काले गोरों की इख्तरा नहीं है, ये मशरिक और मगरिब के लोगों की बात नहीं है। मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी फख्र की बात यह है कि जिस इंजील का मुझे मेरे खुदा ने गवाह ठहराया है, उसका माखिज, उसका मंबा, उसका ओरिजिन वो खुद है। दूसरी बात, इंजील खुदा के बेटे यीशु की बाबत है। तीसरी बात, इसका वादा पुराने अहदनामे के अंबिया की मारिफत किया गया। इंजील कोई नई चीज नहीं है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में भी थी, लेकिन पर्दे के अंदर थी, नए अहदनामे में खुलकर सामने आ गई। चौथी बात, ये निजात के लिए खुदा की कुदरत है। पांचवी बात, ये आलमगीर है, इट्स यूनिवर्सल। ये यहूदियों, गैर कौमों, सारे इंसानों के लिए है। छठी बात, इसका दारोमदार सिर्फ ईमान पर है। और रसूल अपनी बाबत ये बयान करता है पहली बात की पहली आयत के अंदर कि वो रसूल है, खुदा का बंदा है, लेकिन जिस काम के लिए उसे डेसिग्नेट किया गया है, जिस काम के लिए उसे सेपरेट किया गया है, उसे डेडिकेट किया गया है, वो खुशखबरी के लिए मखसूस है। और मखसूस के लिए ग्रीक जुबान का लफ्ज अफरीजो, इसी से लफ्ज फरीसी निकला है। और फिलिपियों के खत के अंदर तीसरे बाब की 5वीं आयत में रसूल अपनी बाबत कहता है कि शरीयत के एतबार से फरीसी हो। पहले फरीसी था शरीयत के एतबार से, अब फरीसी बन गया खुशखबरी के एतबार से। और शरीयत और इंजील के अंदर फर्क यह है, शरीयत ये कहती थी कि तुम ये करो तो खुदा के करीब आ सकते हो। इंजील कहती है कि खुदा ने पहल की है, ऐ गुनहगार, तुझे गले लगाने के लिए, तुझे अपने पास लाने के लिए, तुझे बहाल करने के लिए। ये इंजील की फौकियत और उसकी बरतरी है कि खुदा खुद बनी आदम खोए हुओं को ढूंढने के लिए जमीन पर आ गया। और इस आयत के अंदर हमें उसकी मखसूसियत, उसकी डेडिकेशन जो इंजील के लिए है, इसका जिक्र मिलता है कि वो सिर्फ मखसूस इस बात के लिए किया गया है ताकि वो खुशखबरी का पैगाम दे। और पहला कोरिन्थियों पहले बाब के अंदर वो कहता है, मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बल्कि खुशखबरी के लिए बुलाया गया है ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। रसूल ऐसे फल की मानंद है जिसको जिस तरफ से भी छेदो इंजील निकलना शुरू हो जाती है। और आज रात मेरी दुआ यह है, पाकिस्तान का हर एक मसीही, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, किसी तंजीम, किसी चर्च से उसका ताल्लुक है, इससे मुझे
نہیں، لیکن میری دعا یہ ہے کہ انجیل کے مکاشفے سے ہم معمور اور بھرپور ہو جائیں اور یہ مکاشفہ ہمارے اندر ایک سیلاب بن جائے۔ غلطیوں کے نام خط کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں رسول ذکر کرتا ہے کہ یہ مخصوصیت جو انجیل کے لیے ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ میں اس کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں، غلطیوں کے نام خط پہلا باب 15ویں آیت۔ لیکن خدا جس نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا، ہاللیلویا، اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی تو اس نے میری ماں کے پیٹ میں سے، ابھی کسی کو پتا بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، کیا آنے والا ہے، خدا جانتا تھا کہ یہ نئے عہد نامے کے تیرا خطوط لکھے گا اور یہ غیر قوموں اور یہودیوں کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہوگا۔ کاش ہر ایک مسیحی ایماندار اپنی بابت کے پروکلامیشن دے سکے کہ میں بلایا ہوں، اور مجھے کسی انسان نے، کسی تنظیم نے، کسی گورے کالے نے نہیں، بلکہ مجھے میرے خدا نے اپنے علم ثابت کے موافق میری ماں کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے ہی مجھے بلا دیا ہے۔ اور پھر خوشخبری کے لیے رسول کہتا ہے کہ خوشخبری کی منادی دوسرے تمام کاموں سے ضروری ہے۔ مجھے شک ہوتا ہے ان ایمانداروں کی وفاداری پر جو انجیل کو چھوڑ کر اور کاموں میں دل لگاتے ہیں اور مصروف ہوتے ہیں۔ اگر بلاوا ہے انجیل کے لیے، مخصوصیت ہے انجیل کے لیے، تو پھر کہیے رسول کے ساتھ مل کر، اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں۔ اساں لوگوں تے یہ روب رکھا ہے، اہی تمہیں کلام نہیں سناؤں دے، دسان کر دے، تمہیں نجات نہیں ملی۔ کلام کہتا ہے اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں۔ آؤ آج رات عہد کریں، عقیدے، ضابطے، قانون جن سے ہم لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں یہ سنانے چھوڑ دو۔ انجیل سناؤ، تبدیلی خدا کا کام ہے، روح القدس کا کام ہے، وہ خود کرے گا۔ اور رسول اپنے لیے جو ٹائٹل پسند کرتا ہے وہ یہ نہیں کہ آئی ایم اے پروفیسر، آئی ایم اے ڈاکٹر اینڈ سو۔ میں نے دو یہ اس لیے کہے ہیں کہ یہ میرے لیے استعمال ہوتے ہیں، میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور کئی جگہوں پر لوگ استفسار کرتے ہیں کہ اپنی بابت کچھ دسو، لوگوں دسیے۔ میں ایک جگہ گیا تو بندہ ڈیری لے کے میرے مگر چڑھ گیا، ڈیٹ آف برتھ دس، میں شناختی کارڈ بنوانا ہے۔ میری پہچان صرف یہ ہے کہ میں گنہگار تھا، مجھے مسیح نے نجات دی، اور نجات دے کر اس نے کہا کہ جا دنیا کے گنہگاروں کو بتا، آسمان کے تلے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جو نجات دے سکتا ہو۔ اگر کوئی نام نجات دے سکتا ہے، خوشی دے سکتا ہے، گناہوں کی معافی دے سکتا ہے، تو وہ خدا کے بیٹے یسوع کا نام۔ اور رسول اپنی بابت یہ لقب پسند کرتا ہے، خوشخبری کا خادم۔ اور اگر آپ افسیوں کے نام خط 3 باب 6 آیت میرے ساتھ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ It's not by chance کہ میں خادم بن گیا، It's not by luck کہ میں خادم بن گیا، یا مجھے کسی نے پکڑ کر خادم بنا دیا، نہیں،
یہ تو اس فضل کی بخشش سے ہے جس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر یہ فضل ہوا کہ میں خوشخبری کا خادم بنا. اور خوشخبری کے لیے رسول کا دل اس قدر بھرا رہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں انجیل کا قرضدار ہوں. یونانیوں اور یہودیوں کے لیے جس طرح ایک قرضدار اپنا قرض اتارنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ میرا قرض ادا ہو جائے، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم میں سے ہر ایک خدا کی نجات اور اس کے فضل کے باعث اس خوشخبری کا قرضدار ہے. اگر آپ کو نجات مل گئی، اگر آپ کو خدا نے گناہوں کی معافی دے دی، تو کیا آج رات میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرضداروں کی طرح جا کر گناہ میں مرنے والوں کو، گناہ کے اندر تڑپتی اور سسکتی روحوں کو کبھی جا کر آپ نے بتایا ہے خدا کا بیٹا تمہیں آزاد کر سکتا ہے، وہ بندہ توڑ سکتا ہے، وہ مزبلوں اور خاک اور گھورے سے اٹھا کر تختوں پر بٹھانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ مچھلیاں پکڑنے والوں کو رسول بنا دیتا ہے، وہ قتل کرنے والوں کو چنا ہوا وسیلہ بنا دیتا ہے. ہم قرضدار ہیں. پاکستان کے اندر انجیل کے پیغام کے لیے نجات مل گئی تے کوٹ کے بہ گئے، کسی نو نہ لب جائے. کیوں یہ کر رہے ہو؟ قرضدار ہو. قرضدار تو سکھ کی نیند نہیں سوتا. اور آپ کو کیسے نیندیں آ جاتی ہیں؟ دنیا گناہ میں مر رہی ہے، مخلوقات ضلالت کے قبضے میں کر دی گئی ہے اور خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہی ہے. لیکن ہم اگر جاتے بھی ہیں تو میرا کارڈ دیکھ لو، میری اہلیت دیکھ لو، میری ڈگریاں دیکھ لو، میری قابلیت دیکھو، ان کو کوڑے میں پھینک اور انجیل کا پیغام اس دنیا کو دے تاکہ یہ جہنم سے چھوٹ کر خدا کی بادشاہی کے اندر چلے جائیں، تاکہ یہ شیطان کی قید سے نکل کر مسیح کے ابدی آرام کے اندر داخل ہونے کے لائق بن جائیں. اور یہ کام صرف انجیل کر سکتی ہے. اور ہم میں سے ہر ایک جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں، مجھے گناہوں کی معافی مل گئی ہے، وہ قرضدار ہے کہ دوسروں کو انجیل سنائے. آج ہمارے ملک میں آئیڈینٹی کرائسس ہے. ہم تو چھپاتے پھرتے ہیں اپنے آپ کو. پہلے چلو کبھی نام کے آگے مسیح لکھا ہوتا تھا، کوئی پہچان تھی. اب ہم نے وہاں ذات لکھ لی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہے کون ہے. گاڑیوں میں، بسوں میں ہم یہ بتانا نہیں چاہتے کہ میں مسیحی ہوں اور میں وہ ہوں جس کے گناہ معاف ہوئے. ارے کبھی مقدس داؤد سے پوچھو، وہ کہے گا تو دھن ہے جس کے گناہ معاف ہوئے اور جس کی بد کرداری کو خدا حساب میں نہیں لاتا. آج ڈرنے کا وقت نہیں ہے، آج اپنی پہچان چھپانے کا وقت نہیں ہے. اور دنیا کو بتا دیں ہم تو کوڑی تھے اور گناہ کے کوڑ کے اندر دبے ہوئے تھے کہ کیلوری کی صلیب سے لہو کا ایک چشمہ جاری ہوا اور اس سے پاک ہو کر، اس سے دھل کر ہمیں ابدی زندگی مل گئی. اور ہم قرضدار ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ یسوع ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. اور رسول یہ کہتا ہے کہ انجیل سنانا یہ روحانی عبادت ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. پہلا باب نکالیے میرے ساتھ، رومیوں کے نام خط، نامی آیت. چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے، think about that عبادت. ہم تالیوں تبلوں سے کرتے ہیں، it's good. لیکن یہ عبادت بھی ہے جو روح سے ہوتی ہے. اور رسول کہتا ہے جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری
देने में करता हूं। और यह सबसे बड़ी इबादत है। इंजील सुनाया करो, खुशखबरी का पैगाम दिया करो। दुनिया के कान तरसते हैं खुशखबरी का पैगाम सुनने के लिए, और वो तरस रहे हैं, करा रहे हैं। Tell us about Jesus Christ. Tell us about His gospel. एक दफा फिर ये जज्बा पैदा कर दे, तस्लीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में। इब्लीस हुआ लर्जा इस जोश ने। लेकिन आजकल तो वो बड़ा रिलैक्स हुआ है। वो सोचते हैं मैंने हर ईमानदार को लॉलीपॉप दी हुई है। वो चूसता चूसता 80-90 साल जी के हो जाता। काश खुदा इस नई जनरेशन के अंदर खुशखबरी के पैगाम से भरे हुए और खुशखबरी के ईमान और खुशखबरी के मुकाशफा से भरे हुए नौजवान लड़के लड़कियां बेटे बेटियां पैदा कर दे, ताकि इस मुल्क के फिजाओं के अंदर कोरोना नहीं बल्कि निजात और शिफा के नगमे बुलंद हो जाएं। मैं हैरान होता हूं, एक मसीही भी कोरोना से वैसे ही डरता है जैसे एक आम शख्स डरता है। क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे खुदा ने तुझे आगे पीछे चारों तरफ से घेरा हुआ है और उसका हाथ तुझ पर है और वो तेरी शील है, तेरी सिर पर है, तुझे थामे हुए है। और ज़बूर 91 में गाते हो, कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी। मगर खलो के को कहते ना कोरोना ते भज पैंदे ने जिवें आ गया। ये जंग मास्कों की और सैनिटाइजर्स की नहीं, ये ईमान की जंग है। दुनिया को बता दें उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। और जब कैलवरी की सलीब पर खुदा के बेटे ने इब्लीस, जहन्नुम, बीमारियों और शैतान को अपने पांव तले रौंदा था, उसके अंदर कोरोना भी रौंदा गया है। इसलिए मैं नहीं डरता, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और ये इंजील है। फिर वो कहता है, रसूल अपनी बाबत कहता है, मैं सब कुछ इंजील के लिए करता हूं। जिंदगी का एक ही मकसद, और वो क्या है? इंजील। सारी जिंदगी उसने इंजील को कैश नहीं किया। सारी जिंदगी उसने इंजील को एटीएम कार्ड के तौर पर यूज नहीं किया कि मशीन च पाया के पैसे काट ले। वो तो देता रहा। वो तो कहता है मैं खुद खर्च हो जाना चाहता हूं ताकि दूसरे बच जाएं। ये उसकी कमिटमेंट है, ये उसकी वफादारी है, ये उसकी डिवोशन है इंजील के लिए। और सिर्फ उसकी नहीं, ये हर एक उस ईमानदार की है जो इंजील के मुकाशफे को जान लेता है। और फिर वो कहता है, मैं खुशखबरी सुनाने के लिए हक्कल मकदूर तैयार हूं। यहां पर हक्कल मकदूर के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है प्रोथोमस, इसका मतलब है ईगर, जुनूनी। और फिर इसका मतलब है रेडी, इसका मतलब है विलिंग। कहीं से दावत आ गई कि रसूल इंजील सुनानी है, कोई बात नहीं, हर वक्त मुस्तद, हर वक्त तैयार। इंजील उसके अंदर से उबल रही थी, उसके अंदर से बाहर आ रही थी। और फिर वो ऐलान करता है कि मैं खुशखबरी पर फख्र करता हूं, मैं खुशखबरी से शर्माता नहीं हूं। और वो कहता है क्योंकि मैं इंजील से शर्माता। यीशु मसीह ने कहा था, जो आदमियों के सामने मुझसे शर्माएगा मैं बाप के सामने उससे शर्माऊंगा। क्या कर रहे हैं हम? कलाम कहता है इसलिए मैं नहीं शर्माऊंगा कि ये इंजील हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी और फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। दुनिया की अजीम तरीन तहजीब और कल्चर के अंदर जाने का प्रोग्राम है।
वहां पर वो हिस्ट्री सुनाने की, साइकोलॉजी सुनाने की, थियोलॉजी सुनाने की तैयारी नहीं कर रहा। वो जानता है कि दुनिया की तहजीबें कितनी भी तरक्की याफ्ता हो जाए, गुनाह के अंदर होती हैं और गुनाह के बंद सिर्फ इंजील तोड़ती है। इसलिए वो कहता है कि ये मेरे लिए एहसास है, इस्तेहकाक है, इट्स अ प्लेयर फॉर मी, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि मैं इंजील से शर्माता नहीं। एक जगह पर कुरिन्थियों के नाम पहले खत के पहले बाब की 17 आयत में वो कहता है, सलीब का पैगाम ये हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए इंजील दरअसल सलीब का पैगाम। इंजील की स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी ये सलीब है। खुशखबरी से सलीब निकाल दो, ये खबरी रह जाएगी, खुश नहीं रहेगी। इसको अगर खुश करती है तो वो मसीह की सलीब है, जिससे मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हुआ और दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई। और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इंजील सुनाना मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये एजाज है, इस्तेहकाक है। और ये एजाज फरिश्तों को नहीं मिला, ये हमें मिला क्योंकि गुनाहों की मुआफी हमें मिली है। हम इंजील में कोई रटा रटाया सवाल नहीं सुनाते। ये एक एक्सपेरिमेंट है कि मैं गुनहगार था, इस इंजील ने मुझे बदल दिया। और हम दूसरों को ये बताते हैं कि अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो इंजील है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर इंजील मुकद्दसा की बाबत बेशुमार अबहाम, कंफ्यूजन्स, डिसमिसल्स, बेमानी नजरियात, जाहिलाना अफकार और बातिल नजरियात महव गर्दिश रहते हैं। हम हर रोज ये भी सुनते हैं इंजील मुहर्रफ हो चुकी है, ये अपनी असली हालत में नहीं है। या फिर इंजील की बाबत ये कहा जाता है कि ये हजरत ईसा पर उतरी, या समझा जाता है कि ये कानून या ज़ाबतों का मजमुआ है। और फिर लोग ये भी कहते हैं नकात कि चारों इंजीलों के अंदर हारमनी नहीं, हम आंगी नहीं है। मुझे किसी शख्स ने आकर कहा कि 4 इंजीलें हैं आपके पास। मैंने कहा नहीं, हमारे पास एक इंजील है, लिखने वाले 4 हैं। उन्होंने मुख्तलिफ एंगल से, इल्हाम से, अपनी मर्जी से नहीं, इल्हाम से इन इंजीली बयानात को लिखा है। और आइए आज रात थोड़ी देर गौर करें इंजील क्या है। पाकिस्तान में राइजुल वक्त उर्दू डिक्शनरी फेरोजुल लुगात के मुताबिक इंजील अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है मुज्दा, खुशखबरी और फिर ईसाइयों की मुकद्दस किताब। मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूं, यहां अदब भी तासुब का मारा हुआ है। अंग्रेजी जुबान में हम इंजील के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गॉस्पेल, और ये जो लफ्ज गॉस्पेल है ये एंग्लो सैक्सन टर्म गॉस्पेल से निकला है जिसके मानी है गुड स्टोरी। और ये लफ्ज गॉस्पेल ये लातीनी जुबान का लफ्ज इवेंजेलियन और ग्रीक जुबान का लफ्ज इवेंजेलियन से निकला है। और इसके मानी है खुशखबरी, खुशी की खबर, गुड टाइडिंग। पुराने यूनान के अंदर ये लफ्ज इवेंजेलियन जो है ग्रीक जुबान का, ये उस शख्स के रिवॉर्ड के लिए इस्तेमाल होता था जो अच्छी खबर लेकर आता था, स्पेशली जो मैदान जंग से फतह की खबर लेकर आता था, उसके रिवॉर्ड के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता था। लेकिन होते होते ये लफ्ज चारों इंजीली बयानात के लिए इस्तेमाल होने लगा। लेकिन मैं आज रात वाज़ेह कर दूं, इंजील सिर्फ
किसी कागज और स्याही से लिखी हुई किताब का नाम नहीं है, ना ये किसी मजहबी दस्तावेज का नाम है। इंजील एक शख्स है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसकी बाबत कलाम कहता है कि वो कलमा खुदा, खुदा का कलाम, खुदा का वचन, प्रभु का वचन है, और वो अल्लाह का कलमा और रूह है, वो इंजील है। इंजील बयान तो उसकी बाबत बताते हैं। इंजील तो उस वक्त उतरी थी जब पहले क्रिसमस की रात खुदा ने अपनी गोद को खाली करके अपने इकलौते बेटे को, अपने कलमे को दुनिया के लिए दे दिया, और उसकी पहचान ये थी कि वो इंजील है। अगर कागज स्याही के वर्कों की बात हो तो मार्केट में इससे अच्छी प्रिंटिंग आपको मिल सकती है, खूबसूरत दीदा ज़ेब प्रिंटिंग और ये टेलीग्राफी, ये सारा कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन हम एक शख्स की बात करते हैं जिसने इस दुनिया की तारीख को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कबल अज मसीह और बाद अज मसीह। मैं हैरान हूं, मसीह तारीख का हिस्सा होकर भी तारीख का हिस्सा नहीं बना। ये तो सेंटर और फलक्रम बन गया हिस्ट्री का। हिस्ट्री मसीह और इंजील के गिर्द घूमती है, और जब हम इंजील की बात करते हैं हम उस जलाली बेटे की बात करते हैं जिसने आकर बाप को दुनिया पर जाहिर कर दिया। और उसने कहा, सुनिए उसका कौल, उसकी जुबान मुबारका से ये इरशाद हुआ, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। और ये इंजील उसकी बातें हैं, ये हमदर्द यूनिवर्सिटी के नुस्खों की किताब नहीं है, ये मसीह की बाबत है, उसके मुंह की बातें और इरशादात हैं। और मुकद्दस पतरस अपने दूसरे खत के पहले बाब में, निकालिए खोलिए, ये आयत हम पढ़ेंगे, 16वीं आयत, दूसरा पतरस पहला बाब, पढ़िए 16वीं आयत, गौर से सुनिए। ये लोग जो डरे रहते हैं ना कि इंजील की बात की तो सवाल आएगा कि बदल गई है, गौर से सुनो। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था, यही इंजील है, तो दगाबाजी की खड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी असमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आती सुनी। हम तो उस इंजील की बात करते हैं जिसका भेजने वाला कह रहा है कि मैं इससे खुश हूं। और फिर कलाम कहता है और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोहतबर ठहरा। और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक पांव न फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे।
हौसला रखो, हम दगाबाजी की खड़ी हुई कहानियां लिए नहीं फिर रहे हैं। हमारे पास वो कलाम है जो नबियों का है और ज्यादा मोतबर ठहरा। और मुकद्दस पतरस अपने पहले खत के पहले बाब की 24वीं और 25वीं आयत में कहता है, चुनांचे हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानंद। घास तो सूख जाती है, फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अबद तक कायम रहेगा। हालेलुया। कब तक कायम रहेगा? अबद तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया। कुछ बातें बड़ी अहम कहना है, उनका जवाब देना मुझे ज़ेब नहीं देता, लेकिन आओ हम आगे बढ़ते हैं। इंजील एक ही है, उसके लिखने वाले चार हैं और ये चारों अनाजील इल्हाम के हुस्न का शाहकार है, मास्टरपीस ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन। वो ये अनाजीले अरबा है। और कलाम कहता है इंजील के अंदर इतनी वुसअत है। चारों अनाजील लिखने वालों ने 89 चैप्टर्स, 89 अबवाब और 3779 आयात लिख दी इंजील की बाबत लिखते हुए। फिर भी ये कहते हैं, वो कहते हैं और भी बहुत से काम जो यीशु ने किए वो जुदा जुदा लिखे जाते। तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती हैं उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। इतनी फसाहत, इतनी बलागत, इतनी वुसअत इंजील के पैगाम के अंदर है कि ये चार अनाजील 89 अबवाब 3779 आयात, इनको पढ़ लेने के बाद बंदा तीसरे आसमान के अंदर पहुंच जाता है और खुदा बाप की हजूरी से लुत्फ अंदोज होना शुरू कर देता है। लेकिन जब इसको समराइज किया जाए तो ये सिर्फ इतनी है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक नहीं, किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। इन्हीं जी गल चुकी बदल जाता है। और फिर रसूल कहता है इंजील खुदा की कुदरत है। और ज़बूर 102 में लिखा है वो सारी चीजों को पोशाक की मानंद बदल देता है, लेकिन खुद नहीं बदलता। और अगर वो नहीं बदलता तो उसकी कुदरत कैसे बदलेगी, उसका कलमा कैसे बदलेगा? रसूल कहता है इंजील यहूदी और यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की। ये मेरा लास्ट पॉइंट है, हौसला रखिए। यहां पर कुदरत के लिए यूनानी जुबान का लफ्ज है डुनामिस, जिससे हमारा अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है डायनामाइट। जो पुराने लोग मेरे जैसे यहां बैठे हैं ना, उनको पता है किसी जमाने में साइकिल के आगे भी डायनमो होता था, जो टायर के साथ रगड़ लगने से एक छोटा जनरेटर एनर्जी पैदा करता था, उसको डायनमो कहा जाता था। और ये डुनामिस लफ्ज जो है ये बारूदी कुव्वत को जाहिर करता है, पुलों को उड़ाने के लिए और पहाड़ों को तोड़ने के लिए ये ताकत इस्तेमाल की जाती है। और आज पूरी दुनिया में वो मुल्क नासा है और थ्रेट करते फिरते हैं दूसरों को जिनके पास एटॉमिक एनर्जी या एटम बम मौजूद है। लेकिन आज रात मैं तुम्हें रियलाइज करवाना चाहता हूं, इस किताब की सूरत में तुम्हारे हाथों में आसमानी डुनामिस दे दिया गया है, बारूदी कुव्वत दे दी गई है और इसके अंदर इतनी ताकत और इतनी कुदरत पाई जाती है कि इससे तुम दुनिया को हिला सकते हो। जब हम तारीख के झरोखों में झांकते हैं तो दूसरी जंग अजीम में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में 6 अगस्त 1945 को
सुबह 8 बजे सिर्फ 1800 फुट की बुलंदी से अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया। और इट वाज अ इनिशियल स्टेज ऑफ एटम बम उन्होंने गिराया। और तारीख बताती है कि एटम बम शहर के मिडल या वस्त में गिरा, तकरीबन 1800 मरबा मील रकबा तबाह होकर रह गया। हिरोशिमा जिसे तहजीबों की मलिका मां और शीशे का शहर कहा जाता था, राख का ढेर बन गया। एटम बम के नतीजे में जो बादल उठे 40,000 फीट की बुलंदी तक वो गए और शहर के 75,000 मकानात में से 50,000 जमीन बोस हो गए। लकड़ी के तमाम मकानात जलकर ढेर बन गए। सीमेंट की पुख्ता छतें पियानों की शक्ल में मुड़ गई और वहां का मजबूत तरीन फोर्ट्रेस या किला भी बर्बाद हो गया। तारीख बताती है हर तरफ आग लग गई, गोया क़यामत बर्पा हो गई। बेशुमार लोग झुलस गए, जो जख्मी हुए अक्सर बाद में सिसक सिसक कर मर गए। जगह जगह लाशों के ढेर लग गए और जो बच गए उनकी हालत इंतहाई तकलीफ दे थी। लोगों की बिनाई जाती रही। 1,36,900 अफराद हलाक और जख्मी हुए और बड़ी देर तक उस इलाके में बच्चे उल्टे पैदा होते थे और जमीन अपनी पैदावार नहीं देती थी क्योंकि वहां पर एटम बम गिराया गया। आज हम बैठकर डिस्कस करते हैं कि दुनिया में बदी बड़ी बढ़ गई है, गुनाह बड़ा बढ़ गया है, बदरूहें काम कर रही है। तो तुम मसीह के सिपाही हो, तुम उसके फाइटर पायलट्स हो, तुम्हें आसमानी डूनामिस से लैस किया गया है। ये बातें करने से इब्लीस नहीं डरेगा, ये प्रोपोगेशन करने से इब्लीस नहीं डरेगा, ये चर्च एग्जेक्टिव मीटिंग्स करने से इब्लीस नहीं डरेगा। अगर इब्लीस डरेगा तो इस पैगाम से कि दुनिया को बताओ यीशु सलीब पर मर गया, वो दफन हुआ, उसकी कब्र पर 2 टन का पत्थर रखकर उस पर मोहरें लगाई गई, यीशु फिर भी जी उठा। फ्रांस का जनरल नेपोलियन बोनापार्ट जब वाटरलू के मुकाम पर उसको शिकस्त हुई, he became a psycho patient। बच्चे उसको ये कहकर छेड़ते थे वाटरलू और वो साइको हो जाता था, हवास खो बैठता था। इब्लीस से क्या जंग करनी है, उन्होंने सिर्फ इना कहो कैलवरी वो शुदाई हो जाएगा। उसको पता है कैलवरी पर उसके साथ क्या हुआ था। मैं आज रात इस जगह पर कोई नई बात बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा दाना, अक्लमंद, पढ़े हुए, खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आज रात सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि ख्वाबे खरगोश के अंदर गिरे हुए इंसान, व्हाट्सएप और दूसरे ऐप्स के साथ खेलने वालों, बदी और बदकारी के दरवाजे खोलकर अपने लिए बैठने वालों, ये अय्याशी का वक्त नहीं है, ये पिकनिक का वक्त नहीं है, मैदान जंग है। आओ इस बम को लें और दुनिया को ये बताएं कि शैतान शिकस्त खा चुका है, जंग सलीब पर जीती जा चुकी है, यीशु मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है। मुझे माफ कीजिए, गाने वाले लोगों से माफी मांगता हूं। आज हमने प्रस्तिष्टि को अजीब होम्योपैथिक से शुरू कर दी है। कहां चले गए वो गीत, घर घर में इंजील। आज का रूहानी पड़ोसी का पता करने नहीं जाता, मैनू ने सके तो कैसे गाओगे घर घर में इंजील सुनाओगे। एंड्रॉइड फोन उठाना हम फखर की बात समझते हैं, इंजील उठाना मायूब समझते हैं। मेरे दोस्त हैं, बहुत कदावर शख्सियत, वो कहता है योर एंड्रॉइड इज अ ड्रैगन इन योर हैंड्स। और हम खूब गए हैं इसके अंदर।
पाकिस्तान की गलियां, पाकिस्तान के दरो दीवार, पाकिस्तान के गुनहगार, पाकिस्तान के मरीज एक बार फिर सुनना चाहते हैं, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। कोई मिशन आपको भेजे या ना भेजे, कोई चर्च आपको सेंड करे या ना करे, यीशु आज रात आपको कह रहा है, जाकर सारी खलक के सामने इंजील की। कब तक मसीहों पर तजर्बे करते रहेंगे? जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुरादी करो। इंजील खुदा की कुदरत है, ये हो नहीं सकता एटम बम गिरे और नताइज ना हो, ये हो नहीं सकता इंजील सुनाई जाए और नताइज ना हो। यीशु मसीह ने कहा जब इंजील सुनाई जाएगी, जो ईमान लाएंगे वो निजात पाएंगे, जो नहीं ईमान लाएंगे वो मुजरिम ठहराए जाएंगे। और ईमान लाने वालों के क्या होंगे? मौजज़े इंजील करती है, ये हीलर और डीलर नहीं करते। कोरोना से पहले आपके शहर में शिफा की मंडियां सजती थी, दिन मुकर्रर थे, आ जाओ सेल लगी है शिफा की। कोरोना आया, उसने ढोल का पोल खोल दिया, फिर ऑनलाइन हो गए, वो भी मास्क पहनकर। कौन सी इंजील, कौन सी समझ, कौन सा मसीह तुमको मिला? मैंने उन ग्रंथ्स में जहां शिफा के नगमे होते थे, हिजकियेल करे दुआ शिफावा होंदी है ना, मैंने उन ग्रंथ्स में कोरोना को डांस करते हुए देखा है। और ये पाकिस्तानी मसीहो, मेरी और आपकी कमजोरी है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी जिम्मेदारी हमारे पास है। आओ इंजील सुनाओ, मौजज़े आप ही होंगे। और मौजज़े क्या होंगे? वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबान, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो वक्ती तौर पर अच्छे नहीं होंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। वो सांपों को उठा लेंगे। मॉडर्न थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि ये लिटरली नहीं है, सांपों को उठा लेंगे। अगर वो शेरों से बचा सकता है, नबूकदनेस्सर की भट्टी 7 गुना तेज हो तो वो उसमें आ जाता है। तो अरे ये सांप किस बात की मूली है? हम कुछ नहीं जानते, ना सांपों को, ना उनके पाप को, ना बीमारियों को, ना तारीकियों को, ना जहन्नुम को, क्योंकि ये आसमानी किताब पैगाम देती है। हम छूट गए हैं, हम रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं, उसके लहू से मेरी और आपकी कीमत अदा कर दी गई है। अब हम इनके गुलाम नहीं रहे, हमारी मखसूसियत और गुलामी है तो वो इंजील खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए। इसलिए रसूल कहता है मैं इंजील से शर्माता नहीं। आओ अपने सर झुकाए आज रात। लिफ्ट अप योर हैंड्स और कहिए, ऐ मुजस्सिम इंजील तेरा शुक्र, ऐ यीशु तेरा शुक्र। और थोड़ी देर दुआ करें। अगर आज रात आप बीमार हैं, किसी लाइलाज बीमारी ने, बदरूहों ने, शैतान ने, तारीकी ने आपके घर को अपनी आमाज का बना दिया है, इस कुदरत के कलाम को साथ ले जाइए। ये बंधन तोड़ेगा, आजाद करेगा, मौज से करेगा। सांप चले जाएंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, बदरूहें जाती रहेंगी। हालेलुया। आओ दुआ मांगना शुरू करें।